देखिए सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं संतू पाल की मेडिकल के लिए लेकर के जाया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया कि आखिरकार उनकी गलती क्या थी, उनका कसूर क्या था, किस कसूर के लिए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है और उसके बाद मेडिकल के लिए लेकर के गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল, দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছিল, কিন্তু না দমেছে সন্তু, না দমেছি আমরা, না দমেছে রিপাবলিক বাংলা। আমরা এভাবেই লড়াই চালিয়ে যাব। সুখেন্দুর সঙ্গে আমরা কথা বলছিলাম একটু আগে। সুখেন্দু, আরো একবার জানতে চাইবো এই মুহূর্তে সেখানে কি চলছে, সন্তুকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হলো? দেখো দেখো এই মুহূর্তে যে লেখা রয়েছে, যে রিসেপশনের যে রেজিস্ট্রেশন লেখা রয়েছে, ঠিক সেখানে যে দুটো আছে, সন্তুর মুখ দেখা যাচ্ছে। দেখো সন্তু এখান থেকে দাঁড়িয়ে আছে। जा रहा है। पुलिस ने अब तक ये नहीं बताया कि आरोप क्या लगे हैं, लेकिन मेडिकल टेस्ट के बाद कोर्ट में पेशी की तैयारी है। गलत तरीके से रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर संतूपान को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया। सच्चाई दिखा रहे थे रिपोर्टर संतूपान, उनको संदेश खाली से गिरफ्तार किया गया। 15 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब तक एफआईआर की कॉपी पुलिस ने किसी को नहीं दी है, न ही किसी से मिलने की इजाजत दी है। संतूफान को प्रताड़ित किया गया है, 15 घंटे से खाना भी नहीं दिया गया है। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। संतूफान को मेडिकल टेस्ट के लिए बंगाल पुलिस लेकर जा रही है और कहा जा रहा है इसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन आरोप किसने लगाया, क्या आरोप है, यह बताया नहीं जा रहा, नहीं एफआईआर की कॉपी दी जा रही है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो तस्वीरें भी हमने आप শুনতে পাচ্ছ সমাদিতা? আমরা যে ছবি এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি, যে ছবি ভিতরে একদম শুনতে পাচ্ছি, আমরা ছবি দেখতে পাচ্ছি ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সন্তুপানকে এবং তার মেডিকেল হচ্ছে এই মুহূর্তে। সেই ছবি সরাসরি তুলে ধরছি আমরা, ভিতরে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং প্রথমাফিক যে মেডিকেল করা হয় সে মেডিকেল করা হচ্ছে। কিন্তু সবথেকে বড় কথা এই মুহূর্তে বলবো পিউ, গণতন্ত্রকে কিছুতেই হত্যা করতে দেব না আমরা। এক সন্তুপানের কণ্ঠরোধ করা যাবে না। সুখেন্দু এখানে রয়েছে হাসপাতালে, সুখেন্দুও কিন্তু সন্দেশখালীর মাটিতে এসেছে। সুখেন্দুকেও রেকি করা হয়েছে, বাইক রে রেকি করা হয়েছে, আমাকে বাইক রে রেকি করা হয়েছে, বারবার করা হয়েছে, কিন্তু কোনোভাবেই আমি সুখেন্দু, পিঙ্কি, বিশাখা, তনয়া কেউ দমে যায়নি। আমরা প্রতি মুহূর্তে সন্দেশখালীর মাটি থেকে আপডেট দিয়েছি, দিয়ে যাব এবং একজনের কণ্ঠরোধ করে আমাকে বা সুখেন্দুকে বা তনয়া, বিশাখা, কারুর পিঙ্কি কারুর কণ্ঠরোধ করা যাবে না। যদি ওরা ভেবে থাকে যে সন্তুকে গ্রেফতার করার পরে কণ্ঠরোধ করা সম্ভব হবে, তাহলে ভুল ভেবেছে। সন্দেশখালীর মা বোনদের কথা আমরা বারবার বলেছি এবং প্রথম দিন সেখানে আমি ঢুকেছিলাম, পিঙ্কি ঢুকেছিল, সেখানে কিন্তু আর কোনো মিডিয়া ছিল না। আমি দাবি করছি, ক্যামেরায় আমার প্রমাণ আছে, সেখানে আর কোনো মিডিয়া ছিল না। আমি গিয়েছিলাম খুলনা সায়াগঞ্জ, আমি গিয়েছিলাম পাত্রপাড়া, আমি গিয়েছিলাম নতুন পাড়া, পুকুর পাড়া, পিঙ্কি গিয়েছিল এবং আমরা দুজন মিলে যখন লাগাতার ঘুরেছি তখনও কিন্তু দুজন বাইকে করে রেকি করে গেছে এবং কোনোভাবেই আমাদেরকে কোনো রকম ভাবে ট্র্যাপে ফেলা যায়নি, কারণ মহিলাদের বিরুদ্ধে তো শ্লীলতাহানির মামলা দেওয়া যায় না। সুখেন্দু আমার সঙ্গে রয়েছে, সুখেন্দু যখন লাগাতার ঘুরেছে, সুখেন্দু ওখানে মা বোনদের সঙ্গে কথা বলেছে, তখনও পারেনি কিছু করতে। তককে ছিল ওরা এবং ভীষণ রকম ভাবে, সুচারু রকম ভাবে প্ল্যান করা হয়েছে। কেউ বলতে পারবে, এখানে অনেক মানুষ এখানে রয়েছেন যারা দেখছেন, আপনারা বলতে পারেন যে রিপাবলিক বাংলা প্রথম দিন থেকে মানুষের পাশে ছিল কি ছিল না? आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर लेकर के गए हैं संतूपान को मेडिकल के लिए, लेकिन लगातार सवाल यही कि आखिरकार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पत्रकार के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों। सहयोगी हमारे साथ श्वेता जुड़ गई है। श्वेता, बंगाल सरकार डरी हुई समझ में आ रही है जिस तरीके के यहाँ पर एक्शन लिए गए हैं एक पत्रकार के लिए? देखिए प्रियंका, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो यहाँ की सरकार है वो डर चुकी है। उस सच से जो संदेश खाली का है वो सामने आ चुका है और वो सच सामने लाया गया है रिपब्लिक बांग्ला की उस बड़ी टीम की ओर से जो पहले दिन से जमीन पर डट करके उन पीड़ितों से बात कर रही थी। वो पीड़ित हमारे कैमरे पर आकर अपनी आप बीती सुना रहे थे। वो आप बीती इतनी डरावनी थी कि कोई भी उसको सुन करके डर जाए कि आखिर ये कौन सा हिस्सा है देश का जहां इस तरीके की अराजकता, उस अराजकता पर सबके सब चुप बैठे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लगातार ये महिलाएं जो अपनी आवाज उठाने के लिए पुलिस के पास गई, वो कहती रही कि हमारी कंप्लेन दर्ज कर लो, हमारी सुनवाई कर लो, लेकिन यही पुलिस कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। लेकिन यहाँ संतूपान के मामले में यही पुलिस उतनी ही एक्टिव नजर आती है। सवाल तो यह है कि पुलिस को किसने कहा, पुलिस के ऊपर क्या दबाव था जो इस तरीके से संतू को अरेस्ट कर लिया जाता है। गैर कानूनी तरीके से यह अरेस्टिंग होती है, क्योंकि संतू को जिस तरह से पुलिस ने पकड़ा वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई संतू बहुत बड़े अपराधी हो। पुलिस का जो रवैया रहा है वो साफ तौर पे पक्षपातपूर्ण रहा है इस पूरे मामले में। अगर कुछ ऐसा लग रहा था पुलिस को, तो
पुलिस ने उस वक्त क्यों नहीं बुलाया संतू को, क्योंकि हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहां कहीं भी पुलिस ने कुछ भी रोक टोक नहीं लगाई थी। हम लोग बात करते थे, सब बात करते थे, आकर के अपनी आप बीती सुनाते थे। देखिए सवाल यह है कि जब एक रिपोर्टर फील्ड पर उतरता है तो वो नियम कायदों को ध्यान में रखकर ही अपना काम करता है, और उन नियमों का ध्यान संतू को भी था। जी देखिए श्वेता, सबसे कल एक पत्रकार, नेशनल चैनल का पत्रकार को भी अरेस्ट कर लिया। इसलिए आज हम लोग ब्लैक डे मना रहा है पूरा प्रदेश में। हम सब एमएलए लोग सब ब्लैक रिबन लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का 4th पिलर है। जिस तरीके से एक यंग जर्नलिस्ट काम करते हुए उसको अरेस्ट किया, जिस तरीके से उसका साथ दुर्व्यवहार किया गया है, कल रात को उनको खाना नहीं दिया गया है, उसका क्या था? उसका कोई कसूर नहीं था। उसका खिलाफ इल्जाम है। और भतीजा को क्वेश्चन किया था। जब भतीजा को ईडी बुलाया था सीजीओ कॉम्प्लेक्स में, निकलने का बाद कोई सांबादिक, बंगाल का मीडिया वाला क्वेश्चन करने का उसका लायक नहीं था, उसका साहस नहीं था। सब लोग डरपोक में था। वो नेशनल चैनल का जो रिपब्लिक का लड़का, जो पत्रकार सोंटू पान, उन्होंने क्वेश्चन किया, इसलिए उसको ऊपर अरेस्ट भी किया और उसका फिजिकल मेंटल टॉर्चर भी कर रहा है। ये हालत बहुत गंभीर है बंगाल का। और देखिए सबसे बड़ी बात, जिस तरह के तस्वीरें सामने आ रहे हैं, संतू को प्रताड़ित किया जा रहा है। 15 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। रात में संतू को ना ठीक से खाना दिया गया संतू पान को, ना ही उन्हें किसी से मिलने की इजाजत दी गई, ना एफआईआर की कॉपी, जो मामले लगाए गए उनके बारे में भी बताया नहीं गया। सीधा उनको अरेस्ट किया गया, थाने ले जाया गया और अब मेडिकल टेस्ट के लिए लेकर आए और यहां से कोर्ट में पेश करने की तैयारी है। संदेश खाली को लेकर के डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी का रुख जिस तरीके से रहा, कवरेज से रोक दिया गया, वहां रिपोर्टर को जो है रिपब्लिक के बांग्ला के जो रिपोर्टर हैं संतू पान, उनको अरेस्ट कर लिया गया। बीजेपी के डेलीगेशन को नहीं जाने दिया गया। देखो, जो मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, आप समझ सकते हो कि वहाँ कितनी मनमानी है। और बंगाल में अराजकता का माहौल है। ईडी जाए तो उस पर हमला, बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जाए तो उस पर हमला, मीडिया जाए तो उस पर हमला। मीडिया किसी प्रकार से वस्तु स्थिति को बताए तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसी सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। लोगों की मांग भी यही है कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, लेकिन संदेश खाली वो जगह जहां से तथ्य छुपाए जा रहे थे बंगाल की सरकार की तरफ से, बंगाल की पुलिस की तरफ से, वहां पे जनता में आम परसेप्शन, आम धारणा बन गई है कि वहाँ आदिवासी युवतियों का शोषण किया गया, उनके घर उजाड़े गए, उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया गया। भयभीत वो हैं, उस भयाग्रस्त वातावरण में जी रही हैं और एक गंभीर मामला है। आदिवासी और दलितों पर इस ढंग के अत्याचार बंगाल में कभी नहीं हुए जो अब हो रहे हैं। इसलिए संवैधानिक दृष्टि से वहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी सरकार को ज़्यादा समय पर टिके रहने का अधिकार नहीं है।